Hi, namaste everyone. I am Monica. Welcome back to this channel, that is Moni Super Classes. So today I am back with a new journal awareness topic, that is Indian Innovative Index. But before that, if you are new to this channel, subscribe to the channel, click the bell icon so that you will be keep updated time to time. Moving on with the topic, Indian Innovative Index 2020. So India's Innovative Index was released by Niti Aayog Vice Chairman Dr. Ranjiv Kumar in virtual event in the presence of Niti Aayog CEO and Amitabh Kant and member Dr. V.K. Sachwant. So Niti Aayog, let me tell you, Niti Aayog also known as a think tank of India, and full form of Niti Aayog, like this first alphabet N denotes a national, I for institution, last alphabets TI denotes for transforming India. So National Institution for Transforming India आयोग with the Institution of Competitiveness. ओके, सो ये जो आयोग है, ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट करता है कॉम्पिटिटिवनेस को हमारे इंडिया के रिगार्डिंग. क्या सिग्निफिकेंस है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इज दिस इंडेक्स, इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स एग्जिस्टेड. सो this is one of the second edition of this index demonstrate the center as continuous commitments towards the transforming country. So continuous commitment towards the transforming country, transforming our India in the innovative driven economy. So ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमारे इंडिया की कमिटमेंट को बरकरार रखते हुए हमारे इंडिया को किस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करता है, एक इनोवेटिव ड्रिवन इकोनॉमी में. So recently, the Innovative Index 2020 was released by Niti Aayog, and in which the Karnataka retained the top position in the major state category. So, by the way, we have to remember, for the exam point of view, you guys have to remember that which one is top in which one of the category. So Karnataka retained the top position in the major state category. Okay, and talking about this innovative index, so this innovative index divided into three major category. First is major state, and then union territories, and the hills and northeast states. ओके, तो ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेजर स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में और हिल और नॉर्थ स्टेट्स में. और अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो कर्नाटका ने टॉप किया है. यू कैन सी ओवर हियर बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द 4 of the 5 हाईएस्ट स्कोरिंग मेजर स्टेट्स इन इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स आर मोस्ट लाइक all of this. The fourth टॉप स्कोरिंग स्टेट्स आर फ्रॉम दी सदर्न स्टेट्स. जो हमारे जिन्होंने स्टेट्स मेजर स्टेट्स कैटेगरीज में टॉप किया है ना, उनमें से जो स्टार्टिंग के जो फोर्थ हैं, जो 4 स्टेट्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो सदर्न यानी साउथ से बिलोंग करते हैं. जो वो चारों स्टेट्स यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर जो कर्नाटका है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये टॉप 4 क्या है, ये साउथर्न स्टेट है, सदर्न स्टेट्स हैं. और स्कोर्स भी इंपॉर्टेंट है. अगर कर्नाटका ने मेजर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है, सो कर्नाटका बैक विद 42.5 स्कोर, 42.5 स्कोर के साथ इसने टॉप किया है. एंड रेस्ट इज नॉट very important to remember, but we have to remember the top position backed by Karnataka in category of major state with the score of 42.5. We need to know more about this Innovative Index 2020. So institutions involved, as I told you, the full form is National Institution for Transforming India with the Institution of Competitiveness के regarding ये work करता है. And modeled with GI. Okay, एज द नेम सजेस्ट इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स 2020. तो ये क्या है, ये इंडिया से रिगार्डिंग इंडिया के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी को कंपेयर करता है, राइट. सो वैसे ही जब ये इंडेक्स डेवलप किया गया था विद द लाइन ऑफ ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, इन शॉर्ट GII. बट ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो कंट्रीज को कंपेयर करता है वर्ल्ड वाइड. ओके, बट दिस इज द नेशनल नेशनल लेवल कंपैरिजन ऑफ इनोवेटिव इंडेक्स. तो ये इंडिया के रिगार्डिंग स्टेट्स, इंडिया के यूनियन टेरिटरीज को कंपेयर करता है. एंड बेसिकली, और जब भी हम इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स की बात करते हैं, सो ये डेवलप भी किसके रिगार्डिंग किया गया है, किससे मोटिवेशन लेके, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स को लेके, बेसिकली टू अमेलियोरेट द इनोवेटिव इकोसिस्टम ऑफ इंडियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टू डिजाइन द पॉलिसी फॉर ड्रिवन इनोवेटिव अक्रॉस द रीजन, ताकि हम इंडिया के अंदर जो हमारे इंडियन स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर उनको कंपेयर कर सके और ऐसी पॉलिसी बनाए इन सच अ मैनर सो दैट द पॉलिसी हेल्प्स आवर कंट्री एज अ होल टू ड्राइव इन द इनोवेटिव अक्रॉस द रीजन. सो इनोवेशन को हम एनकरेज कर सकें.
Now talking about the approaches, so the index goes beyond the traditional approaches by considering the best parameter in measuring the innovative, such as a patent per million populations and publication in scientific journals, percentage of GDP spendings on research. So मीनिंग जो ट्रेडिशनल, ये जो इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ उससे ज़्यादा क्या कंसीडर करता है, जो पेटेंट है, पेटेंट हमारी जो पर मिलियन पॉपुलेशन ने कितने क्या ऐसी इनोवेशन की है कि कितने ज़्यादा पेटेंट पर मिलियन पॉपुलेशन ले पा रही है, पब्लिकेशन हमारे जो साइंटिफिक जर्नल्स में कितने हुए हैं, और जो परसेंटेज है जीडीपी का जो परसेंटेज है, कितने परसेंट जीडीपी का हम स्पेंड करते हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ओके, कंट्री का. एंड इट ऑल्सो एट द पैरामीटर स्पेसिफिक. अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, उसको भी इंक्लूड किया गया है in terms of measuring the innovativeness, okay, for the more holistic coverage. Now ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है when we talking about the patent per million population, publication in scientific journal on a global level, but in Indian context we also adding one more like contributor, that is a demographic dividend in terms of measuring the innovativeness. ओके, सो इंडिकेटर यूज़, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर, जो इंडिकेटर यूज़ किए जा रहे हैं सर्वे के अंतर्गत, वो है नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स एंड नॉलेज इंसेंटिव एम्प्लॉयज़. ओके, तो पीएचडी एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, जो नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट कितनी है इंडिया के अंदर, एनरोलमेंट कितना हुआ है हमारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेजेस में, और जो स्किल्स बेस्ड प्रोफेशनल्स हैं वहाँ कितना एनरोलमेंट हो पा रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन नंबर ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग कितनी एप्लीकेशंस फिल्ड हुई है. अब एप्लीकेशंस फिल्ड हुई है मतलब अगर कोई इनोवेशन हुई होगी उसके तभी तो कोई एप्लीकेशन फिल्ड करेगा, तो वही एप्लीकेशंस कितनी फिल्ड हुई है उनको भी मेजर करता है. सो इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हैं, और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का इन्फ्लो इंडिया में कितना हो रहा है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी लीगल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग. दीज आर द पैरामीटर्स और इंडिकेटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द इनोवेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. Okay, these are the indicator this innovative index used. Now major state category. Now this is one of the important slide we have to remember for exam point of view. So as I told you that Indian innovative index categorized into 3 broad category. 3 कैटेगरी में डिवाइड है. पहला तो हमारा स्टेट वाइज हम चेक करते हैं कि कौन किसने टॉप किया है इनोवेटिवनेस में. उसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज को चेक करेंगे कि किसने किया है. तो मेजर जो स्टेट की कैटेगरी है उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है विद 42.5 मार्क्स, ओके, पॉइंट्स. And the state as success has been attributed at the high number of venture capital deals, register of geographic indication और ICT export कितने हैं, और हाई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोज है वो कर्नाटका में ज़्यादा है. तो इन जो कंट्रीब्यूटर और पॉइंट्स के चलते हुए कर्नाटका ने टॉप किया है. एंड फॉर सदर्न स्टेट्स फॉर एग्जांपल कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, ये जो इनकी टॉप पोजीशन है मेजर स्टेट्स कैटेगरीज में, ओके. एंड अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो उनकी रैंक सेकंड है. बॉटम स्टेट्स की बात कर लेते हैं जिसमें झारखंड स्टेट्स, मेजर स्टेट्स कैटेगरी में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार. और बिहार का तो सबसे ही बुरा हाल है, बिहार की सबसे लास्ट रैंक है, बिहार रैंक लास्ट विद 14.5 पॉइंट्स, ओके. वी हैव टू मोस्टली रिमेंबर दैट द फोर्थ मेजर स्टेट हु टॉप द लिस्ट इज फ्रॉम द साउदर्न स्टेट. जो 4 स्टेट्स ने टॉप किया है वो सारे साउथ से हैं, और कर्नाटका ने 42.5 पॉइंट से टॉप किया है मेजर स्टेट्स कैटेगरी में इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स 2020 विच वॉज रिलीज्ड बाय नीति आयोग. and Niti Aayog also known as a think tank, right? So next category we have the Hill and Northeast and Union Territory. So Union Territory is the second categories and Hills and North State is the third one categories. So you can see right over the slide hills. Now talking about the hills and northeastern state in which Himachal Pradesh top the rank. जो hill नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है रैंक में, ओके. एंड देन उसके बाद फॉलोड बाय उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम, ऐसे है. और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हमारी दिल्ली ने टॉप किया है विद द हाईएस्ट ऑन इंडेक्स इन कैटेगरीज ऑफ यूनियन टेरिटरी, ओके, विद द स्कोर ऑफ 46.6. and in terms of or in category of union territory the last and the lowest scorer union territory is Lakshadweep,
with 11.7 points in the innovative index ऑफ इंडिया. सो जो लक्षद्वीप ने सबसे कम स्कोर के साथ सबसे लोएस्ट रैंक है लक्षद्वीप की 11.7 पॉइंट के साथ. और जो दिल्ली है, दिल्ली ने 46.6 पॉइंट के साथ टॉप किया है लिस्ट को यूनियन टेरेटरी की कैटेगरीज में इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स में. और दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट एप्लीकेशन, ओके, अलॉन्ग विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स एंड कंपनी इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. जो दिल्ली में अगर ट्रेडमार्क और पेटेंट एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा हैं. दूसरी बात, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं और कंपनीज हैं, अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में चेक करें तो वो भी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा हुई हैं. Okay, with this now it's a time to check your knowledge based on the concept I just taught you. So now give the answer. You can pause the video and just assume and choose the answer by yourself and then check whether you are right or not. So first question we have, dash was released the Indian Innovative Index 2020. Option A India, नीति आयोग, USA और UN. किसने इंडियन इनोवेटिव रिपोर्ट और इंडेक्स बोल लो 2020 रिलीज किया है? इंडिया ने किया है, नीति आयोग ने किया है, यूएसए ने किया है, यूएन ने. सो आंसर इज नीति आयोग ने रिलीज किया है और इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स 2020. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, इंडिया इज इनोवेटिव इंडेक्स कैटेगरी इनटू. सो जो इंडिया की इनोवेटिव कैटेगरी है, इंडेक्स की कैटेगरी है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 4, 3, 7, नन ऑफ द अबव. सो 3 कैटेगरी वी हैव. फर्स्ट इज अ मेजर स्टेट, सेकेंड इज यूनियन टेरेटरी, थर्ड वन इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिल स्टेशंस. ओके, तो ये 3 कैटेगरीज में हमारा जो इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स है डिवाइडेड है. थर्ड क्वेश्चन वी हैव, डैश हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट ऑन द इंडेक्स इन द कंट्री विद अ स्कोर ऑफ 46.6 इन द यूनियन टेरेटरी एंड स्मॉल स्टेट्स. यूनियन टेरेटरी और स्मॉल स्टेट के केस में जो कैटेगरी है, इसमें किसने 46.6 स्कोर के साथ टॉप किया है? दिल्ली ने किया है, जम्मू ने किया है, तेलंगाना एंड फोर्थ वन इज लक्षद्वीप. सो दिल्ली is top the list of union territory. Okay, last one is, which state or union territory recorded the highest number of trademark and patent application along with the establishment of new startups company in the last financial year. So कौन सी यूनियन टेरेटरी या स्टेट ने जो हाईएस्ट नंबर के साथ रिकॉर्ड करता है ट्रेडमार्क सबसे ज़्यादा और पेटेंट एप्लीकेशन रिकॉर्डेड है हाईएस्ट, जिसके साथ न्यू एप्लीकेशन ऑफ स्टार्टअप्स की नई जो बिजनेस एंड स्टार्टअप्स एंड कंपनी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुई हैं दिल्ली में, लक्षद्वीप में, पौंडुचेरी या दमन एंड दीव. सो दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरेटरी हु टॉप द लिस्ट एंड ऑल्सो द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन दिल्ली ऑल्सो. जो हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रेडमार्क एंड एप्लीकेशन है वो भी दिल्ली में रिकॉर्ड हुई हैं. और छोटे छोटे वेंचर्स हैं, बिजनेस वेंचर्स हैं, न्यू स्टार्टअप भी दिल्ली में लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में इफ़ वी कैन सी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा है. सो आई गेस विद दिस आई एंड दिस वीडियो. You give that much time. Thank you so much. I will meet you in the next video. Till then, have a nice time. Bye for now.